Okay, good morning, my dear students. Now let's start the online class for the day. Now, in the previous class, we just saw that Hannah and Sadav they decided to take this stranger to their house, and so they took him to their house, and just he was arrested. They took them to Sadav's father's room. And then Sadav, as if he had decided to operate or treat the stranger because he was in a very bad condition. And before treating, they felt that it would be good to wash the soldier because he was completely dirty. So they just felt to clean him. So for that intention, they decided to ask the servants, they decided that they will ask the servants to wash the soldier. Let's see how the servants react to this instruction. So let's start the class for the day. There was so fierce a look of resistance. So when Hannah asked Yumi, the servant, to wash, the maid to wash the soldier, she had a fierce look, very bhayanak look on of a look of resistance मतलब not ready to accept. तो उसके चेहरे पे भयानक तरह का एक्सप्रेशन आया, रिजेक्ट करने का, इग्नोर करने का या नॉट इग्नोरिंग, रिफ्यूज करने का। ये चीज़ क्या रिफ्यूज करना कि उस सर्वेंट को वॉश करे। तो शी वॉज हैविंग एन एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्यूजल ऑन हर फेस। Yumi saw that resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. तो ये देखकर ये हमारे Hannah became afraid. She became afraid. वो ज़्यादा ही डर गया वो Yumi का ये चेहरा देख के, ये expression देख के. After all, if the servant should report something that was not as it happened. देखो अभी तक ये हुआ कि बस इनको इधर हमारा इंटेंशन है कि सोल्जर को घर के अंदर लेके जाए, थोड़ा ट्रीटमेंट देके उसको पुलिस के हवाले करे, ऐसे कुछ करे। बट पता नहीं इफ द सर्वेंट्स आफ्टर सीइंग दिस, इफ द मैसेज बाहर वो लोग गलत कुछ करे कि हमने एनिमी को शेल्टर किया, इस तरह का कुछ मैसेज बाहर जाएगा तो हमारा लाइफ थ्रेट में हो जाएगा। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी। तो हना अपना टेम्परमेंट सही रखे, वेरी कामली शी सेड, okay, very well, you understand, we only want to bring him to his senses. हम इसको अपने होश में लाना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं हमारा। You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम इनका अनकॉन्शियस स्टेज इसको कॉन्शियस बना ले, उनका सेंसेस में लाए और उनको आर्मी के अलावा या पुलिस के हवाले करें। सो व्हाट सी हाउ यूमी, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जो भी करो, आई विल हैव नथिंग टू डू विद। आप उनको आर्मी के हवाले करो, पुलिस के हवाले करो, बचाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यूमी से आई एम ए पुअर पर्सन, एक गरीब औरत हूँ मैं, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, इस तरह की चीज़ करना मेरा काम नहीं है। शी टोटली refused it. Then please, then Hannah बोला ठीक है, you may go. Then please, Hannah said gently, return to your own work. आप अपने काम पे return करो, return to your work. At once Yumi left the room. ये सुनते ही Yumi left the room. But this left Hannah with the white man alone. तो उस रूम से जब Yumi left the room, Hannah became alone in the room. She might have been too afraid to stay. Not the anger at Yumi's stubbornness now sustained her. तो आपको मालूम है पहले वो इस आदमी के साथ उस रूम में अकेले बिताने में डर लगते थे, बट अभी यूमी ने जो जिद्द दिखाया, स्टबर्ननेस दिखाया, उसके वजह से वो थोड़ा स्ट्रेंथ इकट्ठा करके उधर ही रहने के उसको वॉश करने का डिसीजन लिया। So she might have been too afraid, ज़्यादा afraid होता वो अगर यूमी के विरुद्ध यूमी का जो स्टबर्ननेस
देखकर उनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया था और उस गुस्से ने उनको स्ट्रेंथ दिया उस रूम में रहकर इस आदमी को वॉश करने का। तो शी वॉज नॉट अफ्रेड नाउ, शी वॉज एंग्री विद द सर्वेंट फॉर व्हाट शी डिड। Then what happened? Stupid Yumi, बेवकूफ है यूमी, that she told in her mind. She muttered fiercely, बहुत गुस्से में ये बड़बड़ाते हुए, Is this anything but a man? देखो ये after all he is a human being, एक man है, and a wounded helpless man, और एक wounded man है, helpless man है, बेहोश कंडीशन में इसको हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? After all he is a man, and stupid Yumi ने इस तरह का व्यवहार किया। इन द कन्विक्शन ऑफ her own superiority, कन्विक्शन मतलब अपने आप का ओपिनियन, कन्विक्शन मतलब ओपिनियन ऑफ her own superiority, मतलब now she feels that she is correct, इस तरह का फीलिंग इसके मन में आया। and what she did, she bent impulsively without thinking, वो ज़्यादा सोचे बिना quickly impulsively she bent and untied the knotted rags that kept the white man covered. White man के ऊपर जो कपड़ा था उसको हटा दिया, मतलब पूरा फट गया था कपड़ा समुद्र से रॉक से टकराने की वजह से, तो उन्होंने वो पूरा कपड़ा उतारा उसका to wash the man. Knotted rags that kept the white man covered. तो white man का कपड़ा उतारा उन्होंने। When she had his breast bare, she took a small clean towel. तो जब उन्होंने को अपना उनको पूरा क्लॉथ हटाया तो उन्होंने अपना टॉवल को गर्म पानी में डुबा के, when she had his breast bare, she took a small clean towel that Yumi had brought into steaming hot water and washed his face carefully. तो कपड़ा उतारने के बाद टॉवल को गर्म पानी में डुबाया जो यूमी लाए थे, उसको डुबा के उसका फेस को जो मिट्टी भरा हुआ था उसको वॉश किया। क्लियर? The man's skin, तो उस समय Hannah was noticing the skin of the white man. The man's skin, though rough with exposure, बाहर का समुद्र से या सन के या सैंड मिट्टी के एक्सपोज होने के वजह थोड़ा रफ हो गया था, was of a fine texture, appearance में बहुत फाइन था, बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा था, and must have been very blonde, और ऐसा लग रहा है कि जब वो बचपन के टाइम पे बहुत ब्लॉन्ड और मतलब वेरी वाइट कलर का हुआ होता यानी बात है चाइल्ड, तो उनका चेहरा देख के लग रहा था कि उसका बचपन में बहुत ही वाइट कलर का फेयर हुआ होगा। ओके, व्हाइल शी वाज थिंकिंग दीज थॉट्स, तो ये सब सोचने के टाइम पे, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ, बट इतना सा भी लाइकिंग उस मैन के प्रति इसको हुआ नहीं। Now that he was no longer a child, देखो वो उनके मन में वो सोच है कि whatever be, this man is not a child now, and moreover that he is our enemy, तो उनको प्रति इतना सा भी लाइकिंग नहीं हुआ हना को। She kept on washing him until his upper body was quite clean, तो upper body जब तक clean हो तो उसको wash करते या But she dared not turn him over, बस उसको उल्टा करने के लिए हिम्मत देते हना में, क्योंकि ऑलरेडी हना को पता था, she knew that he has a wound backside में गोली से लगा हुआ wound था, वो देखने की हिम्मत नहीं था हना में, इसलिए she was not having the courage to turn. Where was Sadao? So she was waiting for Sadao. Now her anger was ebbing. तो पहले आपको मालूम है जब उसको सोल्जर को वॉश करने या एनिमी को वॉश करने के लिए जब वो स्टार्ट किया था वॉशिंग, शी वॉज वेरी एंग्री विद, किससे एंग्री था वो? यस, यूमी से। शी वॉज वेरी एंग्री विद यूमी, बट नाउ हर एंगर एब्ड मतलब थोड़ा कम हुआ, एंगर थोड़ा कम हुआ तो, एंड शी वॉज एंशियस अगेन, बड़ी टेंशन हो गया, एंड शी रोज, और उधर से खड़ा हो गया, वाइपिंग हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और अपने टेंशन की वजह से वो अपने हाथ को रॉन्ग टॉवल मतलब जिस हाथ से वो पोंछना चाहते उस हाथ टॉवल से नहीं, किसी और टॉवल से अपना हाथ को पोंछ लिया, साफ किया। Then let the man be chilled, तो उस समय थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट था, उनको लगा कि इस आदमी अभी अनकॉन्शियस है, इसको सर्दी लगेगा, ये सोच के उन्होंने रजाई उसके ऊपर
ओढ़ लिया। तो हना ने थोड़ा ह्यूमैनिटी दिखाया। शी कवर्ड द मैन विद अ क्विल्ट, शी पुट द क्विल्ट या रजाई ओवर हिम। सडाव शी कॉल्ड सॉफ्टली, तो उन्होंने सडाव के लिए आवाज़ दिया उधर से। ये सुनते ही ऐसे लग रहा था कि सडाव जस्ट बाहर ही था, वो कमरे के अंदर आ गया। He had been about to come in when she called, तो वो बुलाते हुए मतलब जस्ट वो अंदर आने ही वाला था, उस समय नहीं उन्होंने उनको कॉल किया। His hand had been on the door, तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आने ही वाला था जब अना को बुलाया। And now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag, तो पूरा तैयारी के साथ आया था सडो। उनके हाथ में वो जो डॉक्टर्स का बैग होता है जिसमें जो इक्विपमेंट्स पैराफर्नाली जो इस ऑपरेशन वगैरह के लिए चाहिए सारा चीज़ से लेके आया हो। सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर इज सर्जन्स कोट, उस समय डॉक्टर्स जो ऑपरेशन वगैरह करते समय जो कोट पहनते हैं वो भी पहन के आया था डॉक्टर सडाव। दैट मीन्स उनको देखते अभी लग रहा है कि वेल एक्विप्ड डॉक्टर पूरा अटेंशन के साथ फुल्ली सीरियसनेस के साथ इस स्ट्रेंजर को या इस एनिमी को ट्रीट करने के लिए रेडी होकर आया हमारा सडाव। You have decided to operate, सोना ये देखे पूछा तो क्या you have decided to operate? She cried. Yes, he said shortly. सही है। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel, तो clean towel निकाल उधर से upon the floor of the tokonoma. Tokonoma is a table type. Okay, टेबल के ऊपर रखा and put his instrument out upon it, और उनके उस टेबल के ऊपर टावल बिछाकर उसके ऊपर अपना चीज़ें रखा। जो चीज़ें सिसर्स हो, जो वाट एवर थिंग्स रिक्वायर्ड, सब नाइफ वगैरह ऑपरेशन का, एक टावल को अच्छा सा टावल को बिछाकर उसके ऊपर रख दिया डॉक्टर ने। फेच टावल्स ही सर, तो एक काम करो जल्दी जाके टावल्स लेके आओ। ही डॉट है ना। शी वेंट ओबीडियंटली, तो बहुत ओबीडियंट होके वो चला गया टावल लेने के लिए। But how anxious now to the linen shelves and took out the towels, और वो जार से वो जाके अलमारा खोल के उसे टॉवल लेके आया। There out also to be old pieces of matting so that the blood would not run over the fine floor covering, तो उनको लगा कि अभी फ्लोर पे है ये स्ट्रेंजर, अगर कोई मैट लाकर मतलब अभी जो कारपेट कमरे में है बहुत अच्छा कारपेट है, अगर ऑपरेशन अभी इस तरह किया जाएगा तो पूरा कारपेट खराब हो जाएगा, तो शायद पुराना कोई मैट लाकर उसके नीचे बिछाएगा, तो आदमी के नीचे बिछाएगा तो थोड़ा कारपेट को या मैट नया मैट को बचा सकते हैं। सो देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग, मैट का कुछ टुकड़ा बाहर कहीं पड़ा हुआ है, पुराना पुराना मैट्स, ताकि सो दैट द ब्लड वुड नॉट विन द फ्लोर कवरिंग, फ्लोर पे जो कवर रखा है उसको खराब नहीं करेगा इनका ब्लड, ताकि इसके ऊपर जो मैट बिछा सके। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. तो बाहर है ना हमारे गार्डनर जो है वो पुराने मैट को कुछ पेड़ पौधों के ऊपर डालते थे, पेड़ नहीं पौधों के ऊपर, कि विंटर टाइम में उसमें ओस गिरकर खराब ना हो जाए, इसीलिए पुराना मैट कुछ रखा था कुछ पौधों के ऊपर, उधर से कुछ लेकर है ना अंदर आ गया इस स्ट्रेंजर के नीचे बिछाने के लिए, ताकि वो फ्लोरिंग खराब ना हो। बट क्या हुआ, वो मैट लेकर अंदर गया तो when she went back into the room she saw that was useless लगा, अभी वो पुराने मैट का यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा खून बहकर उसका फ्लोरिंग खराब हो गया। The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him, उसका मैट को पूरी तरह से खराब किया। Oh, the mat, she cried. Oh, the mat, oh देखो मेरा मैट खराब हो गया। She cried, yes, it is ruined. Sadav replied, as though he did not care. सदाव ने बिना क्या ज़्यादा केयर का बोला, हाँ हो सकता है वो खराब हो गया, बिकॉज एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते उसका पूरा ध्यान कहाँ था, अपने पेशेंट पे था, अपने मरीज के ऊपर। हेल्प मी टू टर्न हिम, तुम्हें काम करो उसको टर्न करने के लिए मुझे मदद करो, क्योंकि सदाव को मालूम था कि वुंड पीछे है और अब इसको उल्टा कर लेटाना है तभी इसको ऑपरेशन कर सकते हैं।
He commanded her. She obeyed him without a word. कुछ बोले बिना हना उनको हेल्प किया. And he began to wash the man's back carefully. और उसको उल्टा करके उन्होंने उनका पीछे साइड पूरा वॉश किया, साफ किया. यूमी would not wash him, she said. तो उस समय उन्होंने बोला कि यूमी ने इस सोल्जर को वॉश करने से इनकार कर दिया. Did you wash him then? सराह ने पूछा तो तुमने वॉश किया कि मतलब उनको वॉश तुमने किया. सराह asked, not stopping for a moment, his swift, concise movements का क्विक, एक्यूरेट मूवमेंट को कुछ रुकावट न लाए बिना वो हना से बात कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पूरा कंसाइज मूवमेंट पे था, पूरा ध्यान उनका इस पेशेंट पे था, अपना पूरा थिंकिंग पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पेशेंट पे रखे बिना इधर उधर देखे वो हना से पूछा कि क्या तुमने इनको साफ किया. Yes, she said. He did not seem to hear her. हना ने उनको रिप्लाई दिया, but now hours ago he was so deeply involved in this operation that कि वो हना के कोई वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहा. But she was used to his absorption. उनको मालूम था कि उनका हस्बैंड इस तरह का काम करते समय अपना ड्यूटी पे इतना एब्सॉर्ब होते हैं, इतना खो जाते हैं, तो ये हना को पहले से मालूम था. When he was at work, she wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked, so long as it was for the work he did so excellently. तो देखो पहले भी उन्होंने बहुत सारा काम ऑपरेशन किया है, बट क्या उनको सही में मालूम है कि अभी किस तरह का बॉडी पे वो काम कर रहे हैं. पहले उन्होंने बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स का, जापान के लोगों को के ऊपर ऑपरेशन किया होगा, बट अभी जो ऑपरेशन वो कर रहा है वो बिल्कुल अलग सा एक पेशेंट है. आपको मालूम है किस तरह का पेशेंट है, कोई एनिमी है. तो हना सोचते थे क्या मेरा हस्बैंड सही में उनको पता है कि वो किस तरह का पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, क्या वो सही में अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, सोच रहे थे. You will have to give the anesthesia if he needs it. तो अगर ये आदमी ऑपरेशन के बीच में उठ गया तो उसको एनेस्थीसिया, आपको मालूम है बेहोश, क्लोरोफॉर्म या कुछ से उसको बेहोश करना है. अगर होश में आ गया तो तुम उनको बेहोश करना है, एनेस्थीसिया देना है. He said. I, she repeated blankly. तो एकदम से पूछा I, but never have I. मैंने लाइफ में कभी किसी को मैंने एनेस्थीसिया या बेहोश नहीं किया. It is easy enough. ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ईजी है. He said impatiently. He was taking out the packing now. तो आपको मालूम है स्ट्रेंजर जब समुद्र तट पे था तो पहली बार जब सराव उनसे मिला था तो सराव ने कुछ मॉस या समुद्री प्लांट्स जो थे वो उनके चोट के ऊपर डाला था ताकि ब्लड रोके. तो उन्होंने उस पैकिंग को हटाया एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली. तो वो हटाने के उस समय पे ब्लड और ज़्यादा बाहर बहने लगे. He peered into the wound. तो उन्होंने वूंड के अंदर अपने सिर पे, आपको फोटो देख सकते, पिक्चर देख सकते जो है, वो इधर एक फ्लैश लाइट लगाया था, उस लाइट को से उस वूंड के अंदर देखने लगा वो. He peered into the wound with the bright searching light fastened on his forehead. उसके forehead पे जो लाइट लगाया था उसको जला के वो उस वूंड के अंदर देखने लगा कि शायद इसके अंदर वो बुलेट पड़ा हो. The bullet is still there. तो उनका बॉडी के अंदर अभी भी वो बुलेट है. आपको मालूम है बुलेट गोली लगने के बाद किसी ने इसको ट्रीट नहीं किया था, तो the bullet is still there inside him. Now I wonder. सर ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं, विदाउट मच इमोशन, विदाउट मच फीलिंग. उन्होंने बोला अरे गोली तो अभी भी है इसके अंदर. नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज. मुझे अभी पता लग रहा है कि कितना वुंड कितना डीप है. इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट. अभी मैं सोच रहा ये वुंड कितना गहराई में है. अगर ज़्यादा गहराई में तो इस बुलेट को निकालना बहुत मुश्किल होगा. अगर चोट ज़्यादा गहरा नहीं तो मैं इस बुलेट को ईजिली निकाल सकते हैं. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर वो ज़्यादा गहरा चोट नहीं है तो मैं जल्दी से वो बुलेट निकाल सकता हूँ. But the bleeding is not superficial, but the bleeding इतना सीरियस नहीं है अभी. He has lost much blood. वो बहुत सारा खून गया उसके बॉडी से, बट अभी ब्लीडिंग कम है.
ऐसे बोला हमारे डॉक्टर ने. So my dear students, please read the chapter very seriously, very carefully, and listen to the video. And if you have any doubt, please come out with, let it be a silly doubt, let it be a long, very big paragraph, whatever be. You are very free to ask it. So please read the chapter, the portion that I have taken today, read it carefully, write it in a few lines and send it to me positive. Okay? Have a very wonderful day. Thank you.